حضرات میں چھتیس گڑھ ایک بار گیا ہوا تھا تراویح سنانے. یہ غالباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے. جب میں پڑھتا تھا کمپیوٹر سیکھنے جاتا تھا, تراویح سنانے کے لیے گئے تھے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں دن میں تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھ لوں. تو ایک جین کے پاس میں سیکھنا جاتا تھا. جاتا رہا. ایک دن وہ مجھ سے بولا کہ آپ دھارمک گرو ہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی میں تو ابھی پڑھتا ہوں, دھارمک گرو نہیں ہوں, البتہ مولانا لوگوں کو ہی دھارمک گرو کہتے ہیں. تو بولا مطلب یہ ہے کہ آپ دھارمک گرو ہیں؟ میں نے کہا چلیے آپ مان لیجئے. تو بولے آپ دھارمک گرو ہیں تو کیا آپ کی شادی ہوگی؟ آپ کے ہاں دھارمک گرو کی شادی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہوتی ہے, ضرورت پڑتی ہے. ایک تو ہوتی ہے, ضرورت پڑتی ہے تو دوسری بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں دھارمک گرو ہو چاہے عام ناگرک ہو, اسلام میں شادی سب کے لیے ضروری ہے. ورنہ شادی نہیں کر رہے, کنوارے غم کے مارے تو ہیں مگر نیتوں میں بھی فتور ہے, دل میں بھی فتور ہے. اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بات سچ ہے, بھلے سے اچھی نہ لگے مگر سچ ہے. یہ بھارت جو بنا ہوا ہے, اس کے بننے میں ان بھارتیوں کا سپورٹ ہے جو شادی شدہ ہیں اور بچے والے. ورنہ 100 سال تک پابندی لگا دی جائے کہ پورے ہندوستان میں کہیں شادی نہیں ہوگی, 100 سال کے بعد کنوں کتنی آبادی بچی ہے تو چند 100 بڑھیا اور بوڑھے بچیں گے, وہ بھی 10-5 سال میں نمٹ جائیں گے. یعنی بھارت دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. پتہ چلا سچا بھارتی وہ نہیں ہے جو کنوارا ہے, سچا بھارتی وہ ہے جو شادی کر رہا ہے اور اس کے گھر میں بچے جنم لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں لٹیا لے کر کے یا لوٹا لے کر کے یا وہ تھیلیاں لے کر کے, اللہ کے نبی نے ہمیں پہاڑوں پر نہیں بھیجا بلکہ گھر میں رہ کر کے دین اسلام سکھایا, شادی کرنے کا حکم فرمایا, بچوں کو تربیت دینے کا حکم فرمایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں دھارمک گرو ہو چاہے عام ناگرک ہو, سب کے لیے شادی ضروری ہے. اب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ایک مسئلہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لو. اپنے اسلام میں شادی فرض بھی ہے, واجب بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے, اور شادی مکروہ تحریمی بھی ہے, اور شادی کرنا حرام بھی ہے. عام جسمانی حالت میں, یعنی جسمانی حالت ٹھیک ہو اور وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کا نان و نفقے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو, اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کو پورا کر سکتا ہو, ایسی حالت میں ہمارے یہاں شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے. جو شادی نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا. اور عام حالات میں یعنی جسم بھی صحیح ہے اور وہ بیوی کا خرچ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس سے یقین ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے, فرض کہ اگر چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا. اور اگر اسے یقین نہیں بلکہ گناہ میں پڑنے کا صرف اندیشہ ہے تو علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کو شادی کرنا واجب ہے. اور اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا یا خرچہ نہیں اٹھا پائے گا, ہے نا, اسے اس بات کا صرف اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ میں شادی تو کر لوں گا مگر بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا, اور ہے نا میاں بیوی کے جو تعلق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا, اس کا خرچ بھی نہیں برداشت کر پاؤں گا, تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں ایسے آدمی کو شادی کرنا حرام ہے. اللہ اللہ اللہ. ارے بھائی اس کی تو زندگی, اگر کوئی نامرد ہے تو اسلام کہتا وہ شادی نہ کرے. اللہ اللہ. کیوں دوسرے کی زندگی برباد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. الحمدللہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو.
अब जब इतनी बातें समझ में आ गई तो और तवज्जो फरमाएं और जरा गौर फरमाएं। हजरात, मेरे नबी साथी साथी ये भी इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, एक सहाबी रसूल आए। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे एक औरत पसंद आ गई है, भा गई है, इज्जत वाली है, मनसब वाली है, मगर या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह परेशानी की बात यह है कि उस औरत के बच्चे नहीं होते। तारी भाई थक गए हैं, थोड़ा सा पूरी तवज्जो रखो जी। आपके लिए खाने का इंतजाम बज़ाब्ता है। हाँ, इंशाल्लाह कुछ देर के बाद आपको यहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी और आप इंशाल्लाह खाना तनावुल फरमाएंगे इंशाल्लाह। आप ड्राइवर हैं जलसे के, अगर ड्राइवर ही भूखा रह जाए और उसको नींद आ जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं पाएगी। जी, एक सहाबी, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे एक औरत पसंद आ गई है, बहुत इज्जत वाली औरत है, मनसब वाली औरत है, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर परेशानी वाली बात यह है कि उसके बच्चे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे शादी ना करो। मौलाना कफील साहब तशरीफ रखे। मौलाना कफील साहब आपके गांव के इमाम है ना जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। पीलीभीत शरीफ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस इलाके में, आपके इलाके में जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो अक्सर जाया करता था। अभी पीलीभीत की जामे मस्जिद गए थे हम शब बरात में, आप ही के जिले में, तो वो साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे औरत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद वो दोबारा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे एक औरत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। नबी ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर वो तीसरी बार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे एक औरत पसंद आ गई है, इज्जत वाली है, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। तो नबी दो बार तो खामोश रहे। अब जब तीसरी बार वर्ष करते हैं तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, शादी ऐसी औरतों से करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे जन्ने की सलाहियत रखती हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। तो आप कैसे जानेंगे कि किस औरत के कितने ज्यादा बच्चे होते हैं, ये कम? तो ये पुराने लोग जाना करते थे, खानदानी असर होता था कि फला खानदान की औरतों के यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप तो अपने दीन को छोड़ करके चले हो, हम दो हमारे दो पर, ला ला ला, हम दो हमारे दो, मोटरसाइकिल पर भी हम दो हमारे दो, ट्रक पर भी हम दो हमारे दो, बसों पर भी हम दो हमारे दो। ये आपकी गवर्नमेंट भी कहती है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो कितनी सरकारी नौकरी लग ही रही है। यहाँ तो लोग तुम्हारे बैठे हैं तब भी नहीं लग रही, और वैसे भी संविदा पर नौकरी करके करोगे क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हम दो हमारे दो, ये मिशन छेड़ी हुई है हमारी हुकूमत। यही मिशन मुल्क चाइना ने छेड़ा था, चीन में छेड़ा गया था। आज चीन तरस रहा है कि बुढ़े तो बहुत है चीन में, मगर नौजवान नहीं। क्या कहने हैं? और इस वक्त आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साल पहले चाइना एक नंबर, अब इंडिया एक नंबर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है हमारा देश। अगर कम आबादी हो वाला, अगर कम आबादी वाला होना ही तरक्की की अलामत है, तो 4 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल नेपाल पिछड़ा हुआ क्यों है? अल्लाह 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 अल्लाह। 4 करोड़ लोग हैं नेपाल में, 4 करोड़ से ज्यादा की तादाद नहीं है, मगर रोड आज भी फटे पुराने। अल्लाह अल्लाह। पता नहीं चलता कि रोड पे चल रहे हैं या काठमांडू जा रहे हैं। और अपने मुल्क की आबादी 140 करोड़ से जायद हो चुकी है, फिर भी सारे भारतीय हरे भरे हैं।
तो हम दो हमारे दो ये मिशन किसी और का तो हो सकता है, मुसलमान का नहीं हो सकता। आप लोग भी बहुत हालात को देखते हुए रंग बदलते जा रहे हो। आप भी पहले इस्लाम दिखाया करते थे, अब इस्लाम मुसलमान छुपाया करते हैं। अपने इस्लाम को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने मुसलमान बनकर दिखाने की जरूरत है। मुसलमान तो है ही, लेकिन हमारी जिंदगी पर इस्लाम का असर भी दिखना चाहिए। तो हम दो हमारे दो, ये हमारा नारा नहीं है, हम दो और जितना अल्लाह दे वो सब हमारे। क्या बात है? शहरों के लोग के तो दिमाग खराब हो गए यार। अल्लाह कहते हैं अरे हजरत दो बच्चे होंगे तो कहां से तरक्की होगी। ये हमारे मारिद साहब बैठे हैं अभी नानपारा में 8-10 दिन पहले। एक सैयद घराना है, दो नौजवान खूबसूरत लड़के, एक की उम्र 25 साल होगी, दूसरे की उम्र 18-20 साल होगी। दोनों सगे भाई नहाने के लिए गए थे, वही डूब गए और अल्लाह ने उन्हें मौत अता फरमा दी। अल्लाह उन्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाया। दोनों भाई एक साथ। हम लोग गए थे, जनाजे में भी शिरकत की। नानपारा ही का मसला है। तो क्या जरूरी है कि दो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो बुढ़ापे तक जिएंगे? कितने लोगों को सड़कों पे हमने रोते हुए देखा है। इसलिए फितरत से खिलवाड़ ना करो, चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो। क्या कहने? अगर फितरत से खिलवाड़ किया जाएगा तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो सकता है हजरत। और साथ ही साथ मेरे नबी ये भी फरमाते हैं कि जब भी किसी औरत से शादी होती है तो 4 वजहों से होती है। या तो किसी औरत से निकाह इस वजह से किया जाता है कि वो बड़े खानदान की है, तो बड़े खानदान की लड़की है तो इस वजह से रिश्ता पहुंचाते हैं वहां, ताकि मैं बड़े खानदान का दामाद हो जाऊंगा तो जरा कॉलर ऊंचा करके चलूंगा। या तो किसी औरत से इस वजह से रिश्ता होता है कि वो पैसे वाली है, ये दामाद साहब चक्कर में है कि उससे मेरी शादी हो जाएगी तो बस 50 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा। या तो किसी औरत से शादी इस वजह से होती है कि वो निहायत खूबसूरत है, हुस्न और जमाल की बुनियाद पर। ये 3 वजह हो गई। चौथी वजह नबी फरमाते हैं या तो किसी औरत से निकाह इसलिए किया जाता है कि दुल्हन नेक है, दीनदार है, तो नबी फरमाते हैं तुम दीनदार औरतों से शादियां करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आओ, क्योंकि हसीना जमीला तो बहुत है मगर दिन के 10 बजे तक पड़ी हुई सो रही है। अल्लाह। खूबसूरत तो बहुत है मगर 4-4 मर्दों से पड़ोस में ही चक्कर चल रहा है। ऐसी खूबसूरती पे लानत हो। क्या कहने? वाह वाह वाह। अमीर तो बहुत है ससुराल, मगर ससुरालियों के चप्पल उठाने पड़ रहे। ऐसे दामाद होने से क्या फायदा? वाह 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 वाह, क्या बात। इसलिए दीनदार लड़की इख्तियार करो, क्योंकि जब तुम्हारी बीवी कुरान पढ़ी हुई होगी, तुम सो रहे होगे, वो अल्लाह की बारगाह में नमाज तहज्जुद अदा कर रही होगी। आप तो सोते होगे, लेकिन वो सुबह उठ करके कुरान की तिलावत कर रही होगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। इसलिए नेक दीनदार खातून से शादियां करो। मगर आज हम लोग ऐसी घर की लड़की देखते हैं जहां जहेज ज्यादा मिले, जहेज ज्यादा मिले, और लड़की वाले देखते हैं कि दामाद मालदार होना चाहिए, चाहे सड़ा हुआ वहाबी क्यों ना हो, अल्लाह अल्लाह, बस मालदार हो। समझे, ये हालात है लोगों के। पहले वहाबियों में शादी करेंगे लोग, उसके बाद कहेंगे हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है, लोग अपनी शादियां वहाबियों बहुत कर रहे हैं, जरा इस पर तकरीर कीजिए। शादियां करें आप और तकरीर करें हम। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद के इमाम साहब समझा रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, और ज्यादा इमाम साहब ने सख्ती की कि भाई वहाबियों के यहाँ शादी नहीं होगी, तो पता चला इमाम साहब कहीं बोलिए बिस्तर बनवा दिया। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन हो गए उनके। खुदारा अच्छे और नेक लड़की
لڑکیاں اپنے گھر میں شادیاں کر کے لاؤ، کیونکہ جس طرح سے اگر کسی گھر میں اچھے لوگ داخل ہوتے ہیں تو برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جس گھر میں برے لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ نیک خاتون اپنے گھر میں لاؤ گے، کنیز فاطمہ لے کر کے آؤ گے تو انشاءاللہ اس کے قدموں کی برکتیں پورے خاندان کو ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بولو میں صحیح بول رہا ہوں کیا غلط؟ اتنی بات جب آپ نے سن لی تو سنیے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ ارے حدیث شریف پڑھی ہے، زور سے بولو۔ ماشاءاللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اگر آ بھی رہی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے یہ۔ ہاں نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادیاں کرنے کی، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ یہ شادی نظروں کو اجنبیہ عورتوں کی طرف جانے سے بچاتی ہے، اور یہ شادی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی، اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ اللہ کا شکر ہے اس لکھیم پور اور بہرائچ کے حال بہت اچھے ہیں، 20-22 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، مگر شہروں میں دیکھو تو اللہ اکبر، عمر ہو گئی 35 سال، 4 پہیہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، بزنس بھی بڑا۔ ہم نے کہا رہے بھائی صاحب شادی کر لیجئے، بولے ارے حضرت ذرا کچھ لائف بنانے دیجئے، کچھ کیریئر تو بن جائے تب شادی کر لیں گے۔ ارے ماسٹر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ کیریئر بناتے بناتے آپ قبر میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اللہ۔ اگر آپ کی بہن بیٹیاں، ہماری بہن بیٹیاں شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے جا رہی ہیں، اور لمبے لمبے جہیز کی ڈیمانڈ نے ہماری قوم کو یتیم کر دیا ہے۔ آج جس کی 3 بیٹیاں ہیں راتوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں کہاں سے جہیز کے بھکاریوں کی مانگوں کو پورا کرے؟ اللہ اللہ۔ شادیوں کے معاملے میں ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، خوب صرف نکاح اسلام کے مطابق رہ گیا ہے، باقی طرح طرح کی رسمیں، غیر مسلموں جیسی رسمیں ہماری سماج میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ تیل ہے، یہ مہندی لگائیے، ارے بھائی مہندی لگانا تو مرد کو حرام ہے، مہندی لگانا مرد کو حرام ہے، چاہے وہ شادی کے دن ہو یا شادی کے علاوہ۔ اور میری بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی، کوئی بھی آدمی، آپ لوگوں نے شادی کے علاوہ کبھی مہندی لگائی ہے؟ نہیں نا؟ آپ ایسے مہندی، اگر میں مہندی لگا کے تقریر کرنے لگوں تو آپ ہنستے، اللہ اللہ۔ اگر آپ یہاں مہندی لگا کے سننے آتے تو ہم لوگ بھی ہنستے۔ تو جو چیز پوری زندگی شرم کا باعث ہو، ناجائز و حرام ہے، تو وہ شادی کے دن جائز کیسے ہو گئی؟ کیا کہنے؟ ارے بھائی یہ مہندی عورتوں کا حصہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے پہنچی، اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پر مہندی لگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خاتون ہاتھ پر مہندی لگایا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ عورت کی پہچان ہے۔ تو یہ مہندی عورت کے لیے زینت ہے اور مرد کے لیے باعث گناہ ہے۔ تو بچوں میں تمہیں دعوت دوں گا، میری بھی شادی ہوئی، ہم نے الحمدللہ مہندی نہیں لگوائی، آپ بھی سچے غلام مصطفیٰ ہو تو آج کی نشست میں عزم مصمم کر لو کہ انشاءاللہ مہندی نہیں لگوائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں بولیں گے یہ بڑا مشکل ہے، جی بول رہے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ طرح طرح کی رسمیں، یہ تیل ہے، یہ مہندی ہے، یہ جوتا چڑائی ہے۔ جوتا
चुराई, अल्लाह अकबर, यानी साली जूता चुराएगी। जिसने पूरी जिंदगी में कुछ ना चुराया उसे ये आज के दिन चोर नहीं बनवा रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो कभी जिसने चोरी नहीं की, अच्छी खासी लड़की को, नेक खातून बेटी को चोरनी और फिर उस पर नजराना, वो भी जबरदस्ती। क्या चोरी पर कहीं नजराना मिलता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चोरी पर तो डंडे मिलते हैं ना, नजराना कहां मिलता है? अगर कोई चोरी कर ले, थाने पहुंच जाए तो 10-20 डंडे खाएगा ही खाएगा। हक है, हक है। इस्लामी हुकूक इस सऊदी अरबिया में चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, तो ये हिंदुस्तान में चोटियों को नजराना कैसे मिल रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी गौर किया आपने? बारात के दिन जूता चुराई के नाम से, सुन ले मेरी बहन, औरतों का बहनोई पर कोई हक नहीं होता है। ये जूता चुराई की आदतें खत्म कर दो। समाज को बेहतर करने के लिए आप भी ताबुन करो। क्या बात? कनीज़े फातिमा हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और अपनी शादी ब्याह को इस्लामी शरीयत की रोशनी में मुकम्मल करो। और तो और हमारे नौजवानों को अल्लाह जाने क्या हो गया, अभी तो जलसा हो रहा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक मिकाइल भाई और इनके वालिद साहब जनाब अबरार साहब, और उस बच्चे को भी मुबारकबाद दूंगा शिबू भाई को। मगर जब शादी होती है तो बैंड बाजा, रात भर डांस और नाच, रात भर। दूल्हा मियां भी एक रात में 24-24 गाने गा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और 2-4 मोहल्ले के लफंगे और 2-4 दोस्त अहबाब रात भर नाच रहे। पूरी रात दूल्हा मियां ने गाना गाया और जब सुबह हुई तो उनके भाई इमाम साहब के कान में कह रहे हैं, हजरत जरा कलमा धीरे धीरे पढ़ा दीजिएगा, हमारे भाई की जबान लड़खड़ाती है। क्यों भाई मिस्टर जी, आप तो रात में बड़े दमदमाकर गाने गा रहे थे, अब क्या हो गया? ये शर्म की बात नहीं है कि गाने तो पूरे याद हैं मगर कलमे पर जबान नहीं चल रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्या कहने हैं? बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी फरमाते, आलिनु हाज़न निकाह वजालूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और इन निकाहों को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। तिर्मिज़ी की हदीस है, झूठों पर अल्लाह की लानत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से नबी फरमाते हैं, इन निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर आप यहाँ निकाह करवाएंगे निकाह हो जाएगा, घर में निकाह करवाएंगे निकाह हो जाएगा, मदरसे में निकाह पढ़वाएंगे निकाह हो जाएगा, होटल में निकाह पढ़वाएंगे निकाह हो जाएगा। मगर तुम्हारे नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार कर कह रही है कि इन निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद किया करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि 95% लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, तो इस्लाम कहता है कि मस्जिद में निकाह करो, क्योंकि ये निकाह तुम्हारी जिंदगी में बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो इसको मस्जिद में करो ताकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो फिर मस्जिद में नापाक लोग दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ पाक लोग दाखिल होंगे। तुम्हारे निकाह में सिर्फ पाक लोग दाखिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो 5-5 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार के जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं वो फजूल खर्ची बचेगी। और तीसरी बात यह है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो हदीस शरीफ में लिखा है कि काजी या निकाह पढ़ाने वाला जब दुआ करता है मस्जिद में जब दुआ होती है तो मुसलमानों की दुआओं के साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा पैगाम। जिंदाबाद। बाबा, मैं इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम लेकर के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करवाऊंगा। इंशाअल्लाह मस्जिद में निकाह करवाऊंगा। और ये भी ऐलान करता हूं कि जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बेटियों या बेटे का जो हक आएगा वो इंशाअल्लाह जरूर दिया जाएगा।
बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अभी 1 साल पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है। जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज बता रहा है, वही बात तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुम्हें तुम्हारी जमीन जायदाद में तुम्हारी बेटियों का हक है। जी हाँ, अगर एक लड़का और एक लड़की है तो माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से लड़के को जाएंगे, 1 हिस्सा लड़की को जाएगा। अगर लंबे लंबे जहेज देने के बजाय हमने अपनी बेटियों का हक दे दिया होता तो हम दुनिया में भी अच्छे रहते और अल्लाह की रजा भी हमें हासिल हो जाती। मगर बड़ा मुश्किल हो गया है हमारी आदतों में बदलाव होना। खुदारा मुसलमानों में अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हें बेदार करने आया हूँ, अपने घरों में निजाम मुस्तफा कायम कर लो, अपने घरों में शरीयत मुस्तफा कायम कर लो। तुम्हारा चलना बैठना उठना बैठना तुम्हारा सुन्नतों के मुताबिक हो। मगर शर्म की बात है, अल्लाह अकबर, इस्लाम गौर से सुनिएगा, इस्लाम दीन फितरत है और इसमें इंसान के जो जिनसी ख्वाहिश है और फितरी तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए इस्लाम ने निहायत आसान और सही रास्ते बताए हैं। क्योंकि जिनसी ख्वाहिश भी इंसान की फितरत है और उसके हल के लिए इस्लाम ने निकाह को राइज फरमाया। गौर से सुनो इधर सब लोग, और निकाह को इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि 2 गवाहों की मौजूदगी में 2 लफ्जों के जरिए से निकाह मुनाकिद हो जाता है। एक को इजाब कहते हैं, एक को कबूल कहते हैं। लड़के या लड़की की तरफ से जो पेशकश होती है उसे इजाब कहते हैं और दूसरी पार्टी जो कबूल करती है उसे कबूल कहते हैं। तो 2 लफ्ज हैं इजाब और कबूल। 2 शरई गवाहों की मौजूदगी में दुल्हा दुल्हन इजाब और कबूल कर ले, यानी काजी लड़की से इजाजत ले ले और मजलिस में निकाह पढ़ा दे। 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया। बस इस्लाम में इतना ही है। मगर हमने अपने लंबे लंबे खर्चों के जरिए से जिस शादी को इस्लाम ने निहायत आसान बना दिया था, हमने निहायत मुश्किल बना दिया है। पहले जितने बारात में जाते थे आज उतने मंगनी में खर्च कर रहे हैं। ये लंबी लंबी बारातें जा रही हैं, कहीं 10 तरह का खाना है, कहीं 20 तरह का खाना है। अभी देहातों में तो गनीमत है, हमारे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्लाह ताला रहम फरमाए मुसलमानों पर 80 तरह के खाने चल रहे हैं। अभी एक जगह में गया, मैंने एक औरत से पूछा कि शादी कैसी रही, तो उन्होंने कहा हज़रत साहब बहुत अच्छी रही, 5 कम 100 रंग के खाने थे। वो औरत कह रही थी 5 कम 100 रंग के खाने थे। मैंने कहा ये 5 भी क्यों कम कर लिया, सीधे सीधे सोई कर लेते। अरे भाई, पेट है कि इंडिया गेट है, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। और ये बाराती जितने जाते हैं अगर इनकी शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाए तो ये कहते हैं कि हमारी बेइज्जती कर दिया। अम्मा मियाँ जानते हैं तुम कितने इज्जतदार हो, क्या बात है, जानते हैं तुम्हारी कितनी इज्जत है। जाकर के गरीब के दरवाजे पर, लड़के वाले के दरवाजे पर अपनी इज्जत भगा रहे हो। और आलम यह है कि 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल की पानी की जो बोतल होती है 20 रुपए की मिलती है, मगर ये नवाब साहब थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़ा सा हाथ धुल रहे हैं और थोड़ा सा फेंक रहे हैं। यानी इनकी नवाबी को देख करके तो लखनऊ के नवाब भी शर्मिंदा हो जाएंगे। और थोड़ा फ्राई खा रहे हैं और फिर फ्राई से, चिकन फ्राई से पेट भरने के बाद कहते हैं ठीक तो थी लेकिन नमक थोड़ा सा कम था। अरे भाई बेटू साहब, शर्म नाम की कोई चीज है क्या नहीं? जिस फ्राई को तुम खा रहे हो, कई साल से लड़की का बाप उसकी तैयारी कर रहा था। खुदारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो और शादियों को आसान कर दो। अगर आज जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांड को पूरा करोगे तो कल जब तुम्हारी जमीनें भी खत्म हो जाएंगी और 5-5 पोतियां नवासियां तुम्हारे सरों के सामने होंगी और जमीनें भी खत्म हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो कहां से जमीनें बेच बेच के शादियां करोगे, कहां से लाओगे पैसे? इसलिए पूरी कौम से गुजारिश करता हूं, आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। आज तुम दूसरे के लिए आसानी पैदा करो, कल तुम्हारे लिए भी कोई आसानी पैदा करने वाला अल्लाह पैदा फरमा देगा। हजरात, तो हम ये कहते हैं
کہ شادی وہ اچھی ہے جس میں 10 لاکھ کا جہیز ملے، شادی وہ اچھی ہے جس میں جہیز میں بلٹ ملے، شادی وہ اچھی ہے جس میں بارات کو کئی طرح کا کھانا ہو. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن آپ